Hello students, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we will begin with the lesson number 5 of your class 5 science, that is food and health. You know what is food? Can you live without food for a day? No, you cannot. If you will live, you will feel fainted, you will feel tired, your body will not have any energy to do any work, and you cannot play without food. Your body gets energy from the food. So in our daily life we need food in a three times meal, that is breakfast, lunch and dinner. They are the basic needs. So in our daily diet we need three types of food, that is bodybuilding food, protective food and energy giving food. So in bodybuilding food, the food builds our body like proteins, and in energy giving foods, the foods give energy to our body like fats. And in our protective food, the food protects from many diseases. Our health will remain good. So we should eat protective food in our daily life, that are fruits and vegetables. So let's begin with this chapter. In this chapter, we will learn about nutrients of food. Food के क्या-क्या nutrients होते हैं? Second is balanced diet. What do you mean by balanced diet? The diet which contains all the essential nutrients is called balanced diet. Third is preservation of food. How can you preserve food? Fourth is exercise. What do you mean by exercise? And the last one is enough rest. What do you mean by enough rest? So, we cannot stay without food for even a day. हम food के बिना नहीं रह सकते एक दिन भी. You know that? As we feel weak and tired, अगर हम फूड के बिना रहेंगे तो हम बहुत ज़्यादा वीक और टायर्ड फील करेंगे. फूड इज असेंशियल फॉर आवर बॉडी एज इट बिल्ड्स एंड रिपेयर्स आवर बॉडी. फूड हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल है क्योंकि वो हमें हमारी बॉडी को बिल्ड करता है, रिपेयर करता है सेल्स को. फूड गिव अस energy. What does your food gives to you? It gives you energy to do work and to play. It helps us to recover quickly when we are ill. जब हम बीमार होते हैं तो फूड हमें रिकवर करने में हेल्प करता है. As food plays such an important role in our life, it is more important to know what our food contains and how it helps us. हमारी लाइफ में फूड हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो हमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि कौन सा फूड सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, उसमें क्या क्या होता है, what does it contains and how does it helps to us work, कैसे हमारी हेल्प करता है. Now let's talk about nutrients of food. फूड में क्या क्या nutrients होते हैं? Food has special substance called nutrients. What do you mean by nutrients? Food में जो special substances होते हैं that are called nutrients. Now different nutrients are found in different foods. जो different nutrients होते हैं वो different foods में मिलते हैं. Some nutrients provide energy to our body. कुछ nutrients क्या होता है वो हमारी body को क्या देता है? They provide energy. Some help it to grow. कुछ हमें grow करने में help करते हैं. While some help our body to fight with diseases. और कुछ हमें हमारी body को diseases से fight करने में help करते हैं. To get all the nutrients we must eat a variety of food every day. अगर हमें सारे nutrients चाहिए तो हमें हर variety का food खाना चाहिए, like fruits, vegetables, fats like ghee, curd and everything, and proteins like dal, pulses. So there are 5 main nutrients. कितने nutrients होते हैं? 5 main nutrients होते हैं. There are carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. They are the 5 main nutrients that our body needs in the daily life. Now let's talk about carbohydrates. What do you mean by carbohydrates? Carbohydrates क्या होता है? They are the energy giving food for our body. They gives energy to our body. Carbohydrates provides energy to the body. Carbohydrates क्या करते हैं? Provide करते हैं हमारी body को energy. So they are called energy giving food. Carbohydrates energy देते हैं तो उन्हें हम energy giving food कहते हैं. When we do activities such as reading a book, जब हम कोई activities करते हैं जैसे कि we read a book, running or playing games, the body uses a large amount of energy. जब हम running करते हैं या कुछ game खेलते हैं तो हमारी body बहुत ज़्यादा large amount of energy use करती है. We balance the energy that is used up with the food we eat. और हम balance करते हैं अपनी body से जो हम food खाते हैं और जो हम energy use करते हैं. We can replace the loss of energy by eating foods rich in carbohydrates. जैसे हमने जो energy use करी by running, by playing, तो हम उसे replace कैसे करेंगे? हमें वापस से energy को कैसे लाएंगे? By eating foods like carbohydrates. फिर से हमारे अंदर energy आ जाएगी. Now, glucose is a simple carbohydrate which is easily absorbed by the body and gives instant energy. Glucose क्या होता है? एक simple carbohydrate है जिसे हमारी बॉडी बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है और एकदम से इंस्टेंट एनर्जी दे देती है. एथलीट्स एंड अदर प्लेयर्स टेक ग्लूकोज ड्रिंक्स.
जो एथलीट्स होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, जो आपने देखा होगा पेशेंट्स होते हैं, वो ग्लूकोज ड्रिंक्स लेते हैं बिफोर अ कंपटीशन और रेस। एथलीट्स कब लेते हैं और प्लेयर्स कब लेते हैं? जब कोई कंपटीशन होता है, रेस होता है, उससे पहले ग्लूकोज ड्रिंक्स लेते हैं ना। लेट्स टॉक अबाउट प्रोटीन्स। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटीन्स? Proteins help us to grow and are used to build and repair worn out cells in our body. Proteins हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं और क्या करते हैं? दे बिल्ड एंड रिपेयर worn out cells। जो worn out cells होते हैं उन्हें रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। They are present in almost all food stuff. Food like beans, meat, dairy products, fish, eggs, nuts are rich in proteins. क्या क्या रिच होता है प्रोटीन्स में? Fish, dairy products, beans, meat, eggs, nuts, they all are rich in protein and they give protein to our body, so they are called बॉडी बिल्डिंग फूड, क्योंकि वो हमारी बॉडी को बिल्ड करता है। जो रिपेयर्स है, जैसे सेल्स को रिपेयर करना हो तो उसमें हेल्प करते हैं। वॉन या टॉन सेल्स होते हैं, उन्हें रिपेयर करते हैं। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स ऑल्सो गिव एनर्जी टू अस। फैट्स की तरह कार्बोहाइड्रेट्स भी हमें एनर्जी देते हैं, बट फैट हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। In fact, fats give more energy than carbohydrates. फैट्स जो होता है हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा। वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, बटर, घी, चीज़, क्रीम एंड ड्राई फ्रूट्स आर सम सोर्सेज ऑफ फैट्स। क्या क्या है सोर्सेज फैट्स के? वेजिटेबल ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, बटर, घी, चीज़, क्रीम एंड ड्राई फ्रूट, दे ऑल आर द सम सोर्सेज ऑफ आवर फैट। ईटिंग टू मच फैट कैन बी हार्मफुल। जो हम ज़्यादा फैट खा लेते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। Excess eating of fatty food can make us obese fat। जो है हम एक्सेसिव फूड खाते हैं वो हमें क्या बनाता है? ओबीस बना देता है, मतलब हमें मोटा बना देता है। दैट इज द डिजीज ऑल्सो। ओबेसिटी कैन कॉज डायबिटीज एंड हार्ट डिजीजेस। ओबेसिटी भी एक डिजीज है और वो क्या कॉज करती है? डायबिटीज कॉज कर देती है, हार्ट डिजीजेस कॉज कर देती है। एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द विच बॉडी कैन यूज लेटर। जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब्ड होता है, स्टोर्ड होता है, वो हमारी बॉडी लेटर यूज के लिए उसको रख लेती है। तो लेट्स टॉक अबाउट विटामिन्स एंड मिनरल्स। दे आर द प्रोटेक्टिव फूड फॉर आवर बॉडी। दे गिव्स आवर बॉडी रिलीफ फ्रॉम द डिजीजेस। दे प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर नीड इन स्मॉल क्वांटिटीज। ये हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है। They help us to fight and protect ourselves from diseases। ये हमें फाइट करने में और डिजीजेस से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। So these are called protective foods। तो इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड्स कहते हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर फाउंड इन फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जो विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं कहाँ मिलते हैं हमें? फ्रेश फ्रूट्स में मिलता है या वेजिटेबल्स में मिलता है। विटामिन्स कैन बी क्लासिफाइड एज फैट सॉल्युबल विटामिन्स। विटामिन्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? जो फैट्स होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, जो डिसॉल्व हो जाता है हमारी बॉडी में। फैट सॉल्युबल विटामिन्स like vitamin A, D and K, these are the fat soluble vitamins। and what the soluble vitamins are? vitamin B and C जो water में dissolve हो जाता है, they are vitamin B and C। Now let's talk about water and roughage। What do you mean by water and roughage? As you all know, in our daily life we need water to drink। the water help in the digestion of the food and throw the extra things from our body through urine or sweat। so our body also need roughage। roughage क्या करता है? जो हमारा एक्स्ट्रा फूड होता है उसे थ्रो आउट करने में हमारी बॉडी से हेल्प करता है थ्रू द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। so in addition to this above nutrients, our body needs sufficient water and roughage। एडिशन जो होता है मतलब कि हमने जो न्यूट्रिएंट्स पढ़े, हमारी बॉडी में क्या क्या चाहिए था? एक्स्ट्रा वाटर भी चाहिए था, रफेज भी चाहिए था, सफिशिएंट वाटर चाहिए, हमारी बॉडी को प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए। ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। जो हमारी बॉडी का 2/3 पार्ट है किससे बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ वाटर। मोस्ट ऑफ आवर ब्लड कंसिस्ट ऑफ वाटर। जो हमारी बॉडी में ब्लड है वो क्या कंसिस्ट करता है? इट इज कंसिस्ट ऑफ वाटर। देयरफॉर वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर बॉडी। तो इसलिए वाटर क्या है? हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी कैन नॉट लिव वेरी लॉन्ग विदाउट वाटर। हम वाटर के बिना ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकते। यू नो दैट। roughage of fiber is that part of food which cannot be digested by the body। roughage of fiber क्या होता है? वो ऐसा पार्ट होता है हमारे फूड का जो हम इजिली डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो it add bulks to our food and help our muscles। roughage क्या करता है? हमारे फूड में बल्क ऐड करता है मसल्स में एंड हेल्प मसल्स को हेल्प करता है टू पुश द फूड थ्रू आवर स्टमक। और हमारे स्टमक से उस फूड को पुश करने में एंड इंटेस्टाइन से।
इट कीप्स आवर इंटेस्टाइन इन गुड वर्किंग कंडीशंस। रफेज हमारी बॉडी के इंटेस्टाइन को अच्छी कंडीशन में वर्क करने के लिए हेल्प करता है। बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जिससे हम अनडाइजेस्टेड फूड से रिड हो जाए। रफेज इज प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स फूड, रफेज हर प्लांट फूड में प्रेजेंट होता है, सैलेड्स में प्रेजेंट होता है, वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है। नाउ let's talk about balanced diet. As I told you in the starting, what do you mean by balanced diet? Does all the essential nutrients present in the food is called balanced diet. A diet is a balanced diet is a diet that contains sufficient amount of different components of food like carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, sulfate, and water needed for the healthy functioning of our body. Balanced diet क्या? It is a diet that contains sufficient amount of food, जिसमें sufficient amount of different components of food होते हैं, जैसे कि carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, sulfate and water, जो हमारी body को needed होता है to help for a healthy functioning of the body. Now here's a growing knowledge point. Frying renders the food tasty but destroys all vitamins. Frying क्या करता है? सारे फूड टेस्टी देते, मतलब सारे फूड टेस्टी हो जाते हैं बट सारे विटामिन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उसके। इट ऑल्सो मेक्स द फूड हार्ड टू डाइजेस्ट, और डाइजेशन में भी हार्ड कर देता है, वो इजीली डाइजेस्टेड नहीं होता हमारा फ्राइंग फूड। नाउ सेकंड पॉइंट, रोस्टिंग रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ विटामिन एंड इन द फूड। जो रोस्टिंग होती है क्या रिजल्ट करती है? जो हमारा लॉस ऑफ विटामिन होता है हमारे फूड में, वो रिजल्ट करती है। सो फिर जो हम रोस्ट करते हैं जो भी प्रोडक्ट, उसमें सारे विटामिन खत्म हो जाते हैं। Now let's talk about preservation of food. How should we preserve food in the refrigerator or wherever we are preserving? So food is spoiled by germs. कौन spoil करता है food को? Germs. Like bacteria and molds. Germs are like bacteria and mold. They spoil our food. Molds cause a cotton-like appearance. Molds क्या cause करता है? Cotton-like appearance cause करता है हमारे food पे। Appearance on bread. Such bread is not fit to eat. जो ये ब्रेड होती है फिट नहीं होती खाने के लिए। मिल्क, एग्स, मीट, मिल्क हो गए, एग्स हो गए, मीट्स आर ऑल्सो स्पॉइल्ड बाय बैक्टीरिया। जो मिल्क होता है, एग्स होता है, मीट होता है, ये क्या होता करता है हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं बैक्टीरिया के थ्रू। आफ्टर फ्यू डेज फ्रूट्स एंड विटामिन टू बिगिन टू रॉट। कुछ दिन के बाद जो फ्रूट्स और विटामिन होता है ये भी खराब होने लगते हैं। वी शुड नेवर ईट स्टेल ब्रेड, हमें कभी भी स्टेल या खराब ब्रेड नहीं खानी चाहिए। Rotten fruits and vegetables भी नहीं खाने चाहिए। Food can be preserved by providing condition in which germs cannot live. Food हम कहाँ preserve कर सकते हैं? जहाँ पे germs रह ही नहीं सकते, ऐसे डिग्रीज पे, ऐसे माइनस डिग्रीज पे preserve कर सकते हैं। For example, bacteria and molds need air to live. जैसे कि बैक्टीरिया और मोल्ड्स को तो एयर चाहिए रहने के लिए, उसे या तो एयर टाइट कंटेनर्स में पैक दीजिए। So we must put food in airtight containers. तो हमें अपने फूड को एयरटाइट कंटेनर्स पे रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो बैक्टीरिया रह नहीं सकते। बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव एट लो टेम्परेचर्स। जो बैक्टीरियाज होते हैं वो लो टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं करते। सो मिल्क, एग्स, मीट एंड वेजिटेबल्स आर प्रिजर्व्ड टू बाय कीपिंग देम इन रेफ्रिजरेटर। जो मिल्क होता है, एग्स होते हैं, और मीट होता है, और मिल्क होता है, वेजिटेबल्स होता है, कहाँ प्रिजर्व होता है? They are always preserved in refrigerators. Your mother preserved these food in your fridges. So, second point, fruits and fishes are boiled, sterilized and put into airtight tins. जो food होते हैं जैसे कि fish हो गए, boiled fish हो गए, और उनको पहले boil किया जाता है, then sterilize किया जाता है, and they are put in the airtight containers, airtight tins. While canning foodstuff should be kept in mind that air is not left in tins. जब हम कैनिंग करते हैं फूड स्टफ्स को, हमें दिमाग में रखना चाहिए कि जो उसके अंदर है एयर नहीं बचनी होनी चाहिए टिन्स में। थर्ड, वी हैव एन ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ प्रिजर्विंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमारा एक ओल्ड ट्रेडिशन है फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को प्रिजर्व करने का इन द फॉर्म ऑफ पिकल्स, चटनीज एंड कैंडीज। किसकी फॉर्म में रख सकता है? पिकल्स। डिड योर ग्रैंडमदर पुट पिकल्स फॉर यू? चटनीज एंड कैंडीज। While preparing these things, salt, sugar, oil, spices, vinegar, etc. are used as preservatives. क्या क्या डलता है इसमें preservatives की तरह? We put salt. Excessive salt से ज़्यादा bacteria नहीं आते. Sugar, oil, spices, vinegar, etc. Fourth point, boiling kills bacteria. Boiling से क्या होता है? जो bacteria होता है वो kill हो जाता है, जो milk में bacteria होता है वो kill हो जाता है. So milk can be preserved for 2-3 days using boiling technique. तो मिल्क को हम कैसे 2-3 दिन तक प्रिजर्व रख सकते हैं? उसे बार बार हम बॉईल करेंगे तो वी कैन
put that we can preserve that for minutes for 2-3 days. And the last point is without water bacteria cannot grow. वाटर के बिना कभी भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकता. सो पल्सेस ग्रेन्स आर वेल ड्राइड एंड प्रिजर्व्ड. इसलिए पल्सेस और ग्रेन्स को अच्छे से ड्राई करना चाहिए. देन वी शुड प्रिजर्व देम. सम वेजिटेबल्स आर आल्सो ड्राइड इन द सन. कुछ वेजिटेबल्स क्या होते हैं, उनको भी ड्राई किया जाता है सन में. दे कैन बी यूज लेटर ऑन इन ऑफ सीजन्स. तो उन्हें हम लेटर ऑन यूज कर सकते हैं ऑफ सीजन्स में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सरसाइज. रेगुलर मॉर्निंग एक्सरसाइज कीप्स द बॉडी फिट एंड हेल्दी. जो रेगुलर मॉर्निंग एक्सरसाइज होती है क्या करती है, हमारी बॉडी को फिट और हेल्दी रखती है. इट हेल्प्स इन डेवलपिंग एंड वो हमारी बॉडी को डेवलप करने में और टोनिंग ऑफ द मसल्स पे हेल्प करती है. रेगुलर एक्सरसाइज हमारे मसल्स को डेवलप करती है, टोन करती है. इफ वी डोंट एक्सरसाइज रनिंग साइकिलिंग एंड योगा, अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे जैसे कि रनिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, योगा हो गया, द मसल्स बिकम वीक. हमारी मसल्स वीक और लूज हो जाती हैं बहुत ज़्यादा. ड्यूरिंग एक्सरसाइज द ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीजेस. जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, आपने देखा आपकी बॉडी रेड हो जाती है बिकॉज ऑफ ब्लड सर्कुलेशन. आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है तो आपकी मसल्स भी टोन्ड हो जाती हैं. मोर ब्लड इज कैरी टू द हार्ट एंड ब्रेन. तो ज़्यादा ब्लड कैरी होता है हमारे हार्ट तक और ब्रेन तक. देन वी स्टार्ट ग्लोइंग लाइक रेड ब्रेड. दिस वे इट ऑल्सो हैव्स द नर्वस सिस्टम. इससे क्या होता है, रेड फेस तक ज़्यादा हमारे ब्रेन तक ज़्यादा ब्लड पंप हो गया तो हमारा नर्वस सिस्टम भी अच्छे से वर्क करता है. मोर एयर इज पम्प्ड इन एंड पम्प्ड आउट ऑफ द लंग्स. सो ज़्यादा एयर पंप इन होती है, पंप आउट होती है हमारे लंग्स से, हमारे लंग्स भी अच्छे हो जाते हैं. दस वी टेक मोर ऑक्सीजन, गिव आउट मोर कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसलिए हम ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं. Body sweats a lot, which is good for it, and sweats glands in the skin become more active. तो बॉडी हमारी बहुत ज़्यादा स्वेट करती है, स्वेट ग्लैंड से इन द स्किन एंड हमारी बॉडी एक्टिव हो जाती है. इफ़ यू वांट शार्प माइंड एंड हेल्दी बॉडी, कीप ऑन डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज. अगर आपको शार्प माइंड और हेल्दी बॉडी चाहिए तो यू शुड डू रेगुलर एक्सरसाइजेज लाइक योगा, साइकिलिंग, स्विमिंग, running, etc. Now enough rest. Without rest your body cannot work. You will fall ill. तो आपकी बॉडी को enough rest भी चाहिए होता है. Proper rest and regular hours of sleep relax our muscles. जो proper rest होता है और regular hours sleep होती है वो क्या करता है, हमारी बॉडी के मसल्स को रिलैक्स करता है. And gives our body the much needed rest. हमारी बॉडी को जितना रेस्ट चाहिए होता है उतना देता है. We feel fresh and ready to work अगेन. तो हम बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं, हम रेडी हो जाते हैं वर्क करने के लिए कोई भी. वी कैन वर्क मोर एफिशिएंटली. तो हम ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं. स्लीप ऑल्सो गिव्स टाइम टू द बॉडी. स्लीप क्या करती है, हमारी बॉडी को टाइम दे देती है अच्छे से फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी सेल्स. जिससे हमारी बॉडी के सेल्स अच्छे से ग्रो हो सके और रिपेयर हो सके. तो while you are sleeping your cells grow and repair. Now learning point of this chapter. First point, food has special substances called nutrients. हर फूड में कैसा सब स्पेशल सब्सटेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, we call that substance as nutrients. Second, carbohydrates provide energy to the body. Carbohydrates क्या करते हैं, they provide energy to our body to do different kinds of work. Third, glucose is a simple carbohydrate which is easily absorbed by the body and give instant energy. Glucose एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट. उससे क्या होता है, वो इजीली अब्जॉर्ब हो जाता है हमारी बॉडी में और इंस्टेंट एनर्जी देता है. जो एथलीट्स होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, इसे ग्लूकोज को यूज करते हैं बिफोर देयर गेम्स. फोर्थ, प्रोटीन्स हेल्प अस टू ग्रो एंड आर यूज्ड टू बिल्ड एंड रिपेयर worn out cells in our body. प्रोटीन हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं और वो कैसे यूज होता है, दे आर यूज्ड टू बिल्ड एंड रिपेयर. हमारे जो सेल्स होते हैं उनको बिल्ड करने में, रिपेयर करने में और worn out सेल्स को हेल्प करता है हमारी बॉडी के. फिफ्थ पॉइंट, ओबेसिटी कैन कॉज डायबिटीज एंड हार्ट डिजीजेस. जो ओबेसिटी होती है क्या कॉज करती है, डायबिटीज कॉज करती है और हार्ट डिजीजेस कॉज करती है. नेक्स्ट, विटामिन एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स. जो विटामिन होते हैं और जो मिनरल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं बिकॉज दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मेनी डिजीजेस. roughage of fiber is that part of food which cannot be digested by the body. roughage क्या और फाइबर क्या होता है, वो पार्ट होता है हमारी बॉडी का, वो फूड का जो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता. वो हमें रफेज क्या हेल्प करता है, एक्सक्रीट करने में, उस बॉडी हमारी बॉडी से हेल्प करता है उस वेस्ट ऑफ फूड को.
लास्ट सेकंड पॉइंट, प्रोफेज इज प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स फूड। प्रोफेज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे सारे प्लांट फूड्स में प्रोफेज प्रेजेंट होता है। एंड द लास्ट वन इज रेगुलर मॉर्निंग एक्सरसाइज कीप्स द बॉडी फिट एंड हेल्दी। जो रेगुलर मॉर्निंग एक्सरसाइज होती है वो हमारी बॉडी को क्या करती है? फिट कर देती है और हेल्दी कर देती है। So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.